Hello students, today I am going to discuss some practicals from the chapter of probability and specifically the topic of binomial distribution or the Bernoulli's distribution of probability. So in this content I will taking some practical that are based on the constants of binomial distribution. In the previous class I have told you what is binomial distribution and what is constants. Still at a glance you can see on the screen that there are the basic 6 constants of binomial distribution that you are going to use in the practical. So let's start with the basic practical, and the practical which is in this particular manner, which says that in a binomial distribution the mean and variance is 12 and 4 respectively. Find the parameters of n and p. In this question you have to calculate the value of n and p when mean value is given 12 and variance is given as 4. The one thing you have to remember that variance is the square of स्टैंडर्ड डेविएशन. ये आपको सबको पता होगा कि जो वेरिएंस होता है वो क्या होता है, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. अभी ऊपर जब हमने कांस्टेंट की बात की थी तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या थी, इज वाज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. मैं स्क्रीन पे इसको लिख देता हूँ. द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एन पी एंड क्यू. इन तीनों का रूट था, लेकिन क्योंकि हमें वेरिएंस वर्ड दे रखा है तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर. एंड रूट का भी स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म पे हो जाएगी, दिस फॉर्म पे हमारे पास एक इक्वेशन पुट अप हो जाएगी. एंड मीन की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एन एन पी. ये आपको पता है. तो मैंने इस वैल्यू को जो मैंने वैल्यू दिए रखी थी, मीन कितने 12 के इक्वल था, तो एन एन पी इज इक्वल्स टू हाउ मच 12 एंड इट इज बीन टर्म्ड एज इक्वेशन 1. सिमिलरली वेरिएंस इज गिवन एज 4, तो हमने भी उसी चीज़ को यूज़ कर लिया है. एन पी क्यू इज इक्वल्स टू हाउ मच 4. दिस विल बी द इक्वेशन 2. Now I am going to divide the equation 2 by 1. So we have solved the content in this manner. As you can see that from this basic calculation we can get the value of q as 1.3, and as we all know q is failure whereas p is success, and p plus q is equals to 1, then definitely we can calculate the value of p. आप यहाँ पे आप देखोगे p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस क्यू, एंड 1 माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 2 बाई 3. तो बेसिकली वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ q, वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ p. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n. तो we are just going to place the value of p which is equal to 2 by 3 in the first equation, and after placing the value we get the value of n is equals to 18. And as the question has just asked about with the value of n and p, and we can write it as n is equals to 18 and p is equals to 2 by 3. So in this manner you are going to solve this particular practical. Let's go with one more practical and a bit more elaborated one. तो अब आप देख सकते हो कि हमारे पास ये कंटेंट दे रखा है जिसमें कहा गया है इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड वेरिएंस आर 3 and 3 by 2. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 सक्सेस. तो ऑब्वियसली द फर्स्ट पार्ट विच इज द दिस पार्ट यू कैन इजली सॉल्व. जैसे अभी हमने ऊपर वाला कंटेंट सॉल्व किया है वैसे ही आप इस कंटेंट को भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो. एंड फ्रॉम दैट प्लेस यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एन पी एंड क्यू. Still for the basic revision purpose you can see that I have written the value of np is equals to 3 क्योंकि mean की value 3 given है. Variance is the standard deviation square which is also equal to npq equal to 3 by 2, and this will be termed as equation 2. Again dividing the equation 2 by 1 we get the value of q as 1 by 2. Then definitely if q is equals to 1 by 2 then p will be equal to 1 minus q, the value will be equal to 1 by 2. After placing the value of p as 1 by 2 in the equation 1 we get the value of n is equals to 6. So this was the basic calculation which we have done in the earlier question also. तो यहाँ तक का पार्ट सबको क्लियर हो गया. Now the important part is that the question is asking for the probability for getting 4 success. That means we have to form an binomial distribution equation where the value of x is equals to how much, 4 success. ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 सक्सेस. उसके बिहार पे हमें क्या करना होगा, इक्वेशन बनाना होगा. आप सबने नोटिस किया होगा विच इज़ इन दिस पर्टिकुलर मैनर, होप इट इज़ विजिबल. प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 4 हमें पूछ रहा है तो उसके फॉर्म पे जैसे हमारी इक्वेशन होती है क्या होती है, एन सी आर मल्टीप्लाई बाई पी आर इंटू क्यू एन माइनस आर. तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6. अभी देखिए हमने ऊपर कैलकुलेट कर रखा है. r की वैल्यू अभी हमारे क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट कर रखी थी विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 4. क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये नंबर ऑफ सक्सेसेस या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे आर गोइंग टू आस्क, दैट इज द वैल्यू इक्वल टू 4. जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो कितने सक्सेस के बारे में पूछ रहा है, 4. तो r की जगह हम कितना रखेंगे, 4. देन p की वैल्यू 1 by 2 थी तो हमने वो प्लेस कर दिया, वो r की वैल्यू प्लेस कर दी. q भी वॉज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ q वॉज ऑल्सो 1 by 2. 6 minus 4 हमने n minus r की वैल्यू को सॉल्व किया है. एंड आफ्टर सॉल्विंग द बेसिक इक्वेशन यू गेट द आंसर एज फाइनल एज 15 by 64.
सो इन दिस मैनर यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर मैनर. आपके पेपर में अगर ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं दैट विल बी कैरिंग अराउंड 3 मार्क्स, तो आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे. एंड दिस इज द बेसिक लेवल दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द बीकॉम ऑनर्स पेपर. होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. Thank you students. And one more thing, we will be working more on the longer type of practical based on this content only. The coming video will be based on that content. Thank you students.